Hello friends, welcome back in my another lecture in transportation problems. Today I am going to illustrate with one example that how to find the initial basic feasible solution by any one of the three methods, by northwest corner method, least cost method, and penalty method, right? So let's understand this problem first of all. What is given in this table? These are the three sources, and these 7, 9, 18, these are the supply from these sources, and some of these is 34, and these are the requirement or demands of four destinations D1, D2, D3, D4, and some of all these demand is also 34, right? And what does this 19 mean here? 19, this 19 is in cell 1 1, this is in cell 1 1, right? 1 means first row first column. So this is the cost per unit of shipping from source S1 to destination D1. Similarly is the meaning of other 70 20 in this way, right? So let's start. For first of all, I'm going to formulate this transportation problem as a LPP. Later on we will find initial basic feasible solution by all of these three methods, right? uh, Clearly the total supply 34 RE supply is equal to total demand. ये भी 34 है, इन दोनों का सम 34 है. दिस इज 34 and this is also 34. Total supply is equal to total demand. This implies given transportation problem is a balanced, this is balanced transportation problem, right? Let xij be the number of units to be shipped from, these are the shipped from factory I. ये फैक्ट्रीज दी है हमारे पास जहाँ से सोर्स है. फैक्ट्री I in this case is varying from 1 to 3 sources है, to warehouse J, जो destinations है warehouse J, and J here is 1 2 3 4 because there are 4 destinations respectively. If I and J both are 1 1, that means number of units shipped to x11 बन जाएगा number of units shipped from source S1 to destination D1. So in this way, right? Therefore हमको तो मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको हम Z से डिनोट करेंगे. सी है number of units shipped from source S1 to D1 is 11 x11, राइट. एक यूनिट की कॉस्ट 19 है, तो x11 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय 19, बिकॉज हम टोटल x11 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन J. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई, सेम रीजन, 30 इंटू x12, 50 इंटू x13, 10 इंटू x14. सिमिलरली सेकेंड में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 70 इंटू x21, 30 इंटू x22, 40 इंटू x23, 60 इंटू x24 प्लस 40 इंटू x31 अब यहाँ है, प्लस 8 इंटू x32, 70 इंटू x33 प्लस 20 इंटू x34. सी हियर दिस इज 20. एक यूनिट की कॉस्ट 20 यूनिट है, और अगर हम x34 यूनिट शिप करेंगे फ्रॉम सोर्स 3 टू डेस्टिनेशन 434 है, तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय 20. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट. पहली कांस्टेंट क्या बन जाएगी? टोटल यूनिट. तो पहली कांस्टेंट ये बन जाएगी x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14. these are the number of unit shipped from source S1 to all of the destinations, and these must not exceed 7 because total supply source S1 से 7 है. सिमिलरली सेकंड से क्या क्या बनेंगे? ये बनेगा 21 22 23
2 4, दिस मस्ट नॉट एक्सीड 9, नेक्स्ट आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड दिस मस्ट नॉट एक्सीड 18, राइट। एंड ये तीनों कहाँ से आई हमारे पास? ये तो सप्लाई से आई, तीनों कांस्टेंट फ्रॉम सप्लाई। अब डिमांड से टोटल डिमांड, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 1 1 2 1 3 1 एंड दिस सम टोटल डिमांड ऑफ फर्स्ट डेस्टिनेशन इज 5 एंड दिस मस्ट नॉट, इन तीनों का सम, दिस आर द नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू डेस्टिनेशन, ऑल द सोर्सेज टू डेस्टिनेशन 1। तो इनका सम हमारे पास 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते बिकॉज डिमांड ही 5 है, राइट। सिमिलरली सेकंड कॉलम से क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 1 2 2 2 3 2, दिस मस्ट नॉट एक्सीड 8। नेक्स्ट आएगा 1 3 2 3 3 3, दिस मस्ट नॉट एक्सीड 7। एंड नेक्स्ट फोर्थ कॉलम से आएगा 1 4 1 4 2 4 3 4 and this must not exceed 14 and 1 4 2 4 3 4, these are the number of unit shift from all the sources to destination 4, all the sources to destination 4 and these must not exceed 14। so and जो हमारे पास also नॉन नेगेटिव कांस्टेंट आएगी, जो एक्स आई जे सारे के सारे क्या होंगे? ये दिस विल बी नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। सो टोटल ये कहाँ से निकली? फ्रॉम डिमांड से, राइट, डिमांड से। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल कांस्टेंट्स कितनी होगी? देर आर 7 मेन कांस्टेंट 3 + 4 एंड एक्स आई जे कितने होंगे? S1 से ऑल द डेस्टिनेशन के लिए 4 है हमारे पास, ये 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह हमारे पास टोटल कितने? देर आर 12 डिसीजन वेरिएबल, दीज एक्स आई जे आर 12 डिसीजन वेरिएबल्स बोलेंगे हमको, डिसीजन वेरिएबल्स बोलो, या नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू ऑल द डेस्टिनेशन सेंटर, ये कितने होंगे? 12 वेरिएबल्स है हमारे पास इस केस में, राइट। सो दिस इज द फॉर्मुलेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सम कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स, राइट। नाउ वी विल फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन बाय वन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल initial solution by northwest corner method. This is a given table, right? These are the supplies and these are the demands. Column are destinations and these are rows are sources, right? ये हमारे पास नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो हमने इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। कैसे स्टार्ट होगा? नंबर 1, राइट हियर स्टार्टिंग विद सेल 1 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एलोकेट करेंगे, हम यहाँ पर एलोकेशन कर देते हैं। एलोकेट x11, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ, यहाँ पर मिनिमम क्या है हमारे पास? 7 और यहाँ पर हमारे पास 1 1 में सप्लाई 7 है और रो कितनी और डिमांड कितनी है? 5, 7 और 5 का आता है। एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूला है ना मिनिमम ऑफ A1 B1, तो पहले ये A1 B1 बनेंगे। A1 तो इन दोनों का मिनिमम 5 हुआ, 5 मीन्स किसकी इक्वल आ रहा है? दिस इज इक्वल टू B1। तो यहाँ पर जो एलोकेशन होगी मिनिमम 7 और 5 का, यहाँ पर जो सप्लाई और डिमांड थी, सप्लाई 7 थी, डिमांड 5, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी कर रहे हैं? तो यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी, सॉरी 7 और 5 का 5 है, तो यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगी 5। एलोकेशन को हम सर्कल से डिनोट करेंगे इस तरह से, 5 हो गई। सो इट्स डिमांड इज मीट आउट। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू B1, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट विल मूव टू, बिकॉज ये B1 आ रहा है तो B1 मीन्स हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे। B1 आ रहा है, एज वी नो द रूल, हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे। एरो हेड लगाया मैंने, हॉरिजेंटली मूव टू सेल 1 2, ये 1 2 सेल है, तो 1 2 सेल में अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एलोकेशन कर लेते हैं, एलोकेट। नो सी दिस क्रॉस मैंने कर लिया, मीन्स डिमांड ऑफ फर्स्ट डेस्टिनेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि इसको 5 एलोकेशन चाहिए थी, 5 इसकी डिमांड थी, 5 इसको एलोकेट हो गया है, राइट। ये होगा x12 ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ, यहाँ पर जो सप्लाई होगी 5 सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई। अब यहाँ पर कितनी बची हमारे पास सप्लाई बची सोर्स 1 से 2, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 एंड यहाँ पर सप्लाई 2 और हमारे पास यहाँ पर डिमांड कितनी है? 8, 2 और 8 का आ जाएगा 2,
2 मीन्स ये ए की इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू A1, तो A1 आ गया, तो यहाँ पर एलोकेशन कर रहे हैं हम 2, दिस इज 2, इट मीन्स बिकॉज ये A1 की इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से कैसे मूव करेंगे, अब वर्टिकली मूव करेंगे नीचे को, एरो हेड लगा दी मैंने। नंबर 3, मूव टू सेल वर्टिकली, ये कौन सा सेल है, दिस इज 2 सेल, सेल 2 राइट। यहाँ पर एलोकेशन कर लेते हैं अब 2 सेल में, एलोकेट x 2 ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ, अब देख सकते हैं 2, यहाँ पर इसकी डिमांड थी 8 में से 2 मीट आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 6 इसको और चाहिए, अभी डिमांड है, और 5 to 7, तो दिस इज टोटली सेटिस्फाइड, 2 भी फिनिश हो गया हमारे पास राइट। तो यहाँ पर एलोकेशन क्या होगी, यहाँ पर सप्लाई कितनी है 9 और डिमांड कितनी रहेगी हमारे पास 6, 9 और 6 का आ जाएगा हमारे पास 6, इन दोनों का मिनिमम 6 है, अरे 6 किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू B2, तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे हम, यहाँ पर एलोकेशन होगी 6, और फोर्थ नेक्स्ट आइए, अब कहाँ को मूव करेंगे, बिकॉज ये बी के इक्वल आ रहा है तो हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे, मूव टू सेल, यहाँ से हॉरिजेंटली मूव करेंगे नेक्स्ट सेल को, एडजेंसेंट सेल जो इमीडिएट आ रहा है हॉरिजेंटली में, तो ये सेल है 2 3, मूव टू सेल 2 3, यहाँ पर आप एलोकेशन कर देते हैं, एलोकेट x 2 3 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 6 8, ए भी इसकी डिमांड भी मीट आउट हो गई, 6 इसकी सप्लाई 9 थी, 9 में से 6 एग्जॉस्ट होगी, तो वी आर लेफ्ट विद 3, तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई यहाँ पर 3 है, और डिमांड कितनी है यहाँ पर 7, 3 और 7 का मिनिमम आ जाएगा 3, एंड विच इज इक्वल टू A2 के इक्वल आ रहा है, A2 मीन सप्लाई की इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर एलोकेशन कर दी हमने 3 हो गई, 3 बिकॉज ये A2 है, A2 मीन्स अगर A आता तो वर्टिकली मूव करेंगे, यहाँ से हम वर्टिकली मूव करेंगे नेक्स्ट सेल को, फिफ्थ मूव टू सेल, ये कौन सा सेल है 3 3, मूव टू सेल 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम है सेल, तो यहाँ पर एलोकेशन कर लेते हैं, एलोकेट x 3 3, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, नाउ डिमांड थर्ड डेस्टिनेशन की 7 थी, 3 मीट आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 4 6 3 9, ये तो टोटली अब मीट आउट एग्जॉस्ट हो गई, टोटल सप्लाई फ्रॉम सोर्स 2 से भी एग्जॉस्ट हो गई, तो यहाँ पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई यहाँ पर 18 है, मिनिमम ऑफ 18, और डिमांड यहाँ पर कितनी रह गई है 4, 18 और 4 से मिनिमम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा राइट, सो 4 आ गया, ये 4 किसके इक्वल आ गया, 4 मीन्स ये आ गया हमारे पास B3 के इक्वल, तो हम अगर B आता तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, यहाँ से एलोकेशन हमने 4 कर दी, यहाँ से मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये तो मस्ट एलोकेशन में आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टली यहाँ पहुँच गए हम साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ये तो मस्ट एलोकेशन में आ जाएगा, बिकॉज इसकी सप्लाई कितनी थी, थर्ड सोर्स से सप्लाई 18 थी, 4 एग्जॉस्ट हो गई, कितनी चाहिए हमारे को और 14 यहाँ पर बची है, और व्हाट इज द डिमांड ऑफ फोर्थ डेस्टिनेशन, इसकी डिमांड भी 14 है, तो ये मस्ट एलोकेट होगा, यहाँ पर मूव तो हम पहुँचेंगे तो यहीं पर हम मस्ट एलोकेट में आ जाएगा, तो लिख देंगे एंड मस्ट एलो, यहाँ तो इतना एलोकेट करना ही पड़ेगा, मस्ट एलोकेट, ये कौन सा सेल है 3 4 विच इज इक्वल टू 14, यहाँ तो हमको इतना एलोकेट करना ही पड़ेगा राइट, सो यू कैन सी, अब हम चेक करेंगे जो एलोकेशन हुई है, सो ऑल द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, सी हियर इसकी डिमांड थी 5 मीट आउट, 8 मीट आउट, 7 मीट आउट, 14 मीट आउट, डिमांड सारी कंप्लीट है, सप्लाई देखते हैं टोटल एग्जॉस्ट हुई है, टोटल 5 2 7 6 3 9 and 4 14 18, so in this way all the supply and demand conditions are satisfied right, here कितनी allocations हो गई 1 2 3 4 5 6, here number of allocations, पॉजिटिव एलोकेशन है ये, नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी हुई है 1 2 3 6 एलोकेशन हुई है 6, विच इज इक्वल टू, इसमें रोज कितनी है विच इज इक्वल टू, इसमें रोज है हमारे पास 3, कॉलम्स 4 -1, तो रोज प्लस कॉलम -1, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन आर इक्वल टू 3 + 1 - 4, दैट इज रोज प्लस कॉलम्स -1 की इक्वल आ रही है राइट, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस इम्प्लाइज इनिशियल सॉल्यूशन जो हमारे पास बन गया, इनिशियल सॉल्यूशन इज अ नॉन डिजेनरेट,
नॉन डिजेनरेट है बिकॉज अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस रोज प्लस कॉलम -1 की इक्वल आ जाए तो इसमें सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट बन जाता है। एंड अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते हैं। ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस सॉल्यूशन, जो इनिशियल सॉल्यूशन हमने निकाला, विद दिस इनिशियल सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन आ गई मीन्स हमारे पास एलोकेशंस आ गई। दिस इनिशियल सॉल्यूशन इज, हम क्या करेंगे एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 5, 30 इंटू 2, कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करना, 30 इंटू 6, 40 इंटू 3, 70 इंटू 4, 20 इंटू 14। इसको हम पूरा जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1015, इतना आ जाएगा 1015 आ गया हमारे पास, राइट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ दिस इनिशियल सोल्यूशन ये आ गया हमारे पास इस तरह से। सो हम कहाँ पहुँच गए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ ईस्ट कॉर्नर हमने नॉर्थ वेस्ट से चलना था, साउथ ईस्ट में पहुँचना था, राइट। सो दिस इज इनिशियल सोल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सिमिलरली दूसरे मेथड से करते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड। लिस्ट कॉस्ट मेथड फिर से वही टेबल है सारा, दीज आर द सप्लाईज, दीज आर द डिमांड्स, राइट, सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस, बीच में जो लिखा है जो बात, दैट इज कॉस्ट। लिस्ट कॉस्ट मेथड इज, हम पूरे टेबल में क्या देखेंगे, सबसे लीस्ट कॉस्ट देखेंगे। आप देख सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट इज दिस वन, दिस इज लोएस्ट, लोएस्ट कॉस्ट, ये यूनिट कॉस्ट है, दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। लोएस्ट यूनिट कॉस्ट इज इन द, कौन सा सेल है, इज इन द सेल 32, इन द सेल 32। तो यहाँ पर पहली एलोकेशन होगी, तो एलोकेट करेंगे यहाँ पर, एलोकेट x32, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड चेक करेंगे हम। सप्लाई यहाँ पर ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ, सप्लाई यहाँ पर 18 है, यहाँ पर सप्लाई 18 है और डिमांड कितनी है 8, 8 और 18 का मिनिमम आ जाएगा 8, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलोकेशन तो 8 आ गई और इससे क्या होगा, सप्लाई हमारे पास 8 एग्जॉस्ट होगी, तो कितनी बच गई यहाँ पर 10 बच गई। एंड कॉलम D2 को क्रॉस आउट करेंगे बिकॉज इसकी डिमांड कितनी हो गई, कंप्लीट हो गई है। एंड यहाँ क्या करके डैश 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 कर दिया मैंने, एंड D2, दिस इज कॉलम D2, राइट, दिस इज D1, D2, D3, D4, दिस इज S1, S2, S3, कॉलम D2 क्रॉस आउट, किसकी डिमांड तो मीट आउट हो गई, क्रॉस आउट, राइट। नेक्स्ट फिर से कर दिया। अब क्रॉस आउट को छोड़कर हम देखें मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट इज 19, सॉरी नेक्स्ट कॉस्ट इज 10, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट इज 10 इन सेल, ये कौन सा सेल है 14, तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, तो एलोकेट x14, यह आ जाएगा मिनिमम ऑफ, यहाँ पर सप्लाई 7 है और यहाँ पर डिमांड कितनी है 14, 7 और 14 का मिनिमम आ जाएगा 7, तो इट मीन्स यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी 7, 7 से क्या होगा, टोटल सप्लाई यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे, और ये 14 डिमांड थी, इसकी 14 में से 7 मीट आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 7। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इसमें रो S1 मीट क्रॉस आउट करेंगे, रो S1 क्रॉस आउट, बिकॉज यहाँ पर टोटल सप्लाई क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस आउट हो गई, ये टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, राइट। अब देखेंगे क्रॉस आउट को छोड़कर नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ पर आ गई। नेक्स्ट एलोकेशन सबसे स्मॉल आ गई क्रॉस आउट को छोड़कर, 2, 4, 6, तो 20 है। नेक्स्ट लोएस्ट इज 20, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट इज 20 इन सेल, ये कौन सा सेल है, दिस इज 34, सेल 34, यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, सो एलोकेट x34, तो यह आ जाएगा मिनिमम ऑफ, यहाँ पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई तो यहाँ पर रह गई थी 10 और डिमांड यहाँ पर कितनी रह गई है 7, बिकॉज 7 मीट आउट हो चुकी है, 18 में से 8 एग्जॉस्ट हो चुकी है, 10 बची, 10 और 7 का मिनिमम, तो आ जाएगा 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलोकेशन आ गई 7, 7 होने पर क्या हो रहा है 7, 7, 14, तो हम क्या करेंगे 8, 7, 15, ये 7 और कम हो गया, तो यहाँ पर बची अब सप्लाई 3, 7 और एग्जॉस्ट हो गई, 3 रह गई, 8, 15, राइट, 3 रह गई, यहाँ से करो 7, 7, 14, तो
D4 क्रॉस आउट, बिकॉज क्रॉस आउट डिमांड ऑफ फोर्थ डेस्टिनेशन इज मीट आउट। ये 7 इसकी 14 की 14 स्क्वायर 14 इसकी डिमांड थी, 14 की 14 एलोकेशन इसको हो गई। नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ पर हो गया, बची हमारे पास 4 बची। अब नेक्स्ट एलोकेशन 40 40 है, तो हमारे पास 1 2 3 4, तो कोई भी दो हमारे पास लोएस्ट है। नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट इज इधर भी 40, इधर भी कोई भी ले लो, लेट अस सपोज दिस वन इज, इसको भी ले सकते हैं, तो इज 40 इन सेल, ये सेल है हमारे पास 2 3, सेल 2 3, तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, एलोकेट x23, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई यहाँ पर 9 है, दिस इज सप्लाई 9, और डिमांड कितनी है यहाँ पर, डिमांड यहाँ पर 7 है। बस यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग देखना हमने, सप्लाई 9 डिमांड 7, 9 और 7 का आ जाएगा मिनिमम 7, तो यहाँ भी एलोकेशन क्या हो जाएगी 7, 7 होने पर क्या हो गई, सप्लाई 7 एग्जॉस्ट होगी, तो वी आर लेफ्ट विद 2, और 7 इसकी डिमांड थी डेस्टिनेशन 3 की, 7 इसको मिल गई, तो यहाँ इसको हम क्रॉस आउट करेंगे, एंड D3 क्रॉस आउट, यहाँ भी एलोकेशन होगी। अब हमारे पास बचे केवल ये दो, ये तो वैसे ही आ जाएगा मस्ट एलोकेशन में, बिकॉज ये 7 है, टोटल 9 है, तो ये मस्ट एलोकेट में आ जाएगा, ये तो मस्ट एलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट देखने की जरूरत नहीं है, मस्ट एलोकेट, बिकॉज टोटल सप्लाई और डिमांड कंडीशन मस्ट एलोकेट x21, x21 तो आपको दो एलोकेट करना ही पड़ेगा, मस्ट एलोकेट x21, और यहाँ भी देखो 2 इसकी डिमांड थी 5, 2 इसको मिल चुकी, इसमें 3 नीड इट मोर, और 3 इसको और चाहिए, यहाँ से देखेंगे 17 18, इस तरह ये भी कंप्लीट हो गई, टोटल सप्लाई S3 पर भी एग्जॉस्ट हो गई। ये है x31, ये भी मस्ट एलोकेट में आ जाएगा, यहाँ पर आपको एलोकेशन 3 करनी पड़ेगी। सो इन दिस वे all the supply and demand conditions are satisfied। अब हम चेक कर सकते हैं, डिमांड इसकी थी 235 मीट आउट, डिमांड 8 मीट आउट, कॉलम वाइज चेक करो मैं, डिमांड 7 मीट आउट, डिमांड 14 7 7 14 मीट आउट, सप्लाई फ्रॉम सोर्स S1 7 7 exhausted, supply from source S2 9 2 plus 7 9 exhausted, supply from source S3 is 18 3 8 11 plus 7 18 total exhausted, so all the supply and demand conditions are satisfied। तो हम अगर हम चाहे रो वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज, इन एलोकेशन का सम इन सप्लाईज और इन डिमांड की कुल आना चाहिए, राइट। हियर कितनी एलोकेशन होगी, 2 3 6, हियर नंबर ऑफ positive allocations which is equal to 6 and which is equal to rows plus columns -1, रोज 3 है, कॉलम 4 है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 3 दिस इज 4, ये भी 6 ही बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज इस केस में जो सोल्यूशन बनेगा गिवन, देयरफॉर गिवन जो हमने सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन इज एलोकेशन हमने निकाली, दिस इम्प्लाइज इनिशियल सोल्यूशन जो हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड से निकाला इज नॉन डीजेनरेट, ये फिजिबल हो गया, और ये नॉन डीजेनरेट भी बोल सकते हैं, नॉन डीजेनरेट हो गया। एंड अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस सॉल्यूशन इज, विद दिस सॉल्यूशन इज, कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलोकेशन को हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 70 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 7, जैसे यहाँ पर एलोकेशन 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 10 इंटू 7 एंड फाइनल रहेगा 20 इंटू 7, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 814, तो इतना आ जाएगा। अब देखेंगे कॉस्ट थोड़ी, तो मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से निकालेंगे तो थोड़ी कम हो गई, राइट। लेट्स सी दिस अगेन बाय पेनल्टी मेथड। ये तो कौन था, ये था लिस्ट कॉस्ट मेथड। दिस इज द लिस्ट कॉस्ट मेथड, नाउ बाय पेनल्टी मेथड। अगेन टेबल भी सारा वही है,
these are horizontal rows are the splice and these are the columns, राइट। ये हमारे पास क्या थे, S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4। पहले तो हम निकालते हैं पेनल्टीज में। तो हम क्या करेंगे, पहले हर रो की और हर कॉलम की हम पेनल्टी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालेंगे, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 10 है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या 19, 19 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 9। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या आएगा 40 माइनस 30, ये आ जाएगा 10। थर्ड रो का 20 माइनस 8, ये आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 12। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, 12 आ जाएगी, राइट। ये अब कॉलम वाइज पेनल्टी निकालते हैं। स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 40 माइनस 19, 40 माइनस 19 आ जाएगा 21, ये आ जाएगी इसकी पेनल्टी। इसकी आ जाएगा 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 आ जाएगी 22। यहाँ पर 50 माइनस 40, ये आ जाएगी 10 पेनल्टी। 20 माइनस 10 स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, 20 माइनस 10 यहाँ कितने आ जाएगा 10। तो इस तरह हमने रोज और कॉलम की सभी की पेनल्टी निकाली। टोटल पेनल्टीज कितनी होगी हमारे पास 7, 4 कॉलम वाइज पेनल्टी हैं और 3 हमारी रो वाइज पेनल्टी। फिर इनमें देखेंगे हम सबसे लार्जेस्ट कौन है। इन 9 10 12 इन सब में लार्जेस्ट हमारी आएगी ये, दिस इज लार्जेस्ट एंड दिस कॉरस्पॉन्ड टू कॉलम D2, ये D2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। लार्जेस्ट पेनल्टी सभी में अमंग ऑल दी 7 इज दिस वन। इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम आ रहा है दैट इज D2। अब इस कॉलम D2 में हम स्मॉलेस्ट कॉस्ट देखेंगे, दिस इज स्मॉलेस्ट कॉस्ट, दिस इज अ स्मॉलेस्ट कॉस्ट। इट मीन्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देते नंबर 1 लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है हमारे पास, लार्जेस्ट पेनल्टी इज 22, राइट। एंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन D2 इज 8। तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे हम। अब एलोकेट, ये है 32 x 32, ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ सप्लाई यहाँ पर 18 है, यहाँ पर सप्लाई 18 है और डिमांड कितनी है 8, इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा 8, राइट। तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी हो गई 8 हो गई, राइट। और हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ दिस इज मीट आउट, तो इसको हम क्रॉस आउट करेंगे, D2 क्रॉस आउट, बिकॉज इसकी डिमांड 8 यूनिट थी, इसको मिल भी चुकी है 8 यूनिट, राइट। तो इसकी मीट आउट हो गई। अब फिर से हम पेनल्टी निकालेंगे जो बाकी बची। इसकी तो पेनल्टी आएगी नहीं, क्रॉस आउट हो चुकी है। इसकी वही रहेगी 20, इसकी वही रहेगी 21, इसकी भी 10 ही है, राइट। इसकी भी 10 ही होगी क्योंकि वही चेंज नहीं हो रहा है, 20 माइनस 10 ये 10 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ चेंज हो गया कुछ, यहाँ भी 19 10 सॉरी आपका क्रॉस आउट हो गया है। यहाँ पर पेनल्टी 90, यहाँ भी 9 ही है, अगेन 9, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ भी 40 60, यहाँ चेंज हो गया, 60 माइनस 40 इज 20। अब स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट चेंज हो गई, यहाँ भी किया 40 और 20, यहाँ भी चेंज हो गई, 40 20 आ जाएगा, राइट। अब चार सारी पेनल्टीज आ गई, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ, ये तो निकलेगी नहीं बिकॉज क्रॉस आउट हो चुकी है। तो मैक्सिमम कौन सी है 9 20 20, दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट पेनल्टी है। तो लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 2। सेकेंड टाइम जो पेनल्टी आई हमारे पास, लार्जेस्ट पेनल्टी इज 21 एंड, और दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू D1, और D1 में स्मॉलेस्ट कॉस्ट ये है, ये स्मॉलेस्ट कॉस्ट है। एंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज कॉस्ट इन D1 इज 19। तो हम पहले में एलोकेशन करेंगे, एलोकेट, ये कौन सा सेल है 1 1 सेल है, यहाँ पर होगी 1 1 में सप्लाई कितनी थी, सप्लाई यहाँ पर ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ सप्लाई, यहाँ पर 7 है, सप्लाई यहाँ पर 7 है, डिमांड यहाँ पर 5 है। तो 7 और 5 का मिनिमम आ जाएगा 5, 5 मीन्स यहाँ पर एलोकेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एलोकेशन हम 5 आ जाएगी, एलोकेशन 5। डिमांड भी फर्स्ट डेस्टिनेशन की 5 थी और इसको मिल भी चुकी 5, तो इसको भी हम क्रॉस आउट करेंगे, क्रॉस आउट, दिस इज क्रॉस आउट एंड D1 क्रॉस आउट, ये भी क्रॉस आउट होगी। नेक्स्ट फिर से पेनल्टी निकालेंगे अगेन, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की पेनल्टी आएगी नहीं, डैश डैश कर दी मैंने, राइट। इसकी पेनल्टी वही रहेगी 10, इसकी पेनल्टी 10 है, इसकी पेनल्टी भी 10 ही रहेगी, राइट। अब यहाँ पर ये तो क्रॉस आउट हो चुकी है, हमारे पास ये 2 बची है, 50 माइनस 10 ये हो जाएगा 40, ये 20 रह जाएगा, ये भी 20 है,
एंड 70 माइनस 20 बिकॉज यही बचे हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ये 50 आ जाएगा इन दिस वे, दिस इज 50। अब क्लियर है, लार्जेस्ट कौन सी है हमारे पास, लार्जेस्ट इज 50। थर्ड टाइम जो फिर से हमने पेनल्टी निकाली, लार्जेस्ट पेनल्टी इज 50 एंड दिस कॉरस्पॉन्ड टू, ये S3 रो में आ रहा है और S3 में स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये दो तो क्रॉस आउट हो चुके, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये है 20, दिस इज स्मॉलेस्ट कॉस्ट ये वाले आई एंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन S3 इज 20। तो ये 20 कौन सा सेल है, ये 3-4 सेल है, तो एलोकेट 3-4 सेल में क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा मिनिमम सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड देखेंगे हम। सप्लाई 8 एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर 10 बची थी, 8 एग्जॉस्ट हुई तो 10 बची है, डिमांड तो पूरी यहाँ पर 10 और 14, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी आ गई 10, 8 + 10 18, तो टोटल सप्लाई एस यहाँ पर एग्जॉस्ट होगी, तो इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे, राइट, एंड S3 क्रॉस आउट, इसकी डिमांड 14 थी, 14 में से 10 मीट आउट, तो और कितना चाहिए इसको, और इट नीड 4 मोर, राइट। हमारे पास क्या क्या बचे, बी में हमारे पास दिस हुआ क्रॉस आउट, दिस इज क्रॉस आउट, इसकी पेनल्टी अब फिर से पेनल्टी निकालेंगे, इसकी पेनल्टी आएगी नहीं, इन दोनों की पेनल्टी आएगी नहीं, फर्स्ट 2 कॉलम की। अब नेक्स्ट की पेनल्टी निकालते हैं, इसकी पेनल्टी तो 10 ही है, इसकी पेनल्टी 60 माइनस 10 ये रह जाएगी 50, ये अब इसकी पेनल्टी 50 आ गई, और इसकी आएगी नहीं 50 10 ये 40 ही है, 60 माइनस 20 ये भी 20 है, तो विच इज़ द लार्जेस्ट पेनल्टी है, डैश डैश 10 50, दिस इज 50 और 40 20 डैश, तो दिस इज लार्जेस्ट, ये वाली मैंने सर्कल की है लार्जेस्ट, एंड दिस कॉरस्पॉन्ड टू D4 नंबर 4। और फोर्थ टाइम जब हमने लार्जेस्ट पेनल्टी चेक की, लार्जेस्ट पेनल्टी इज 50 एंड, और ये कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हमारे पास रो या कॉलम है D4, ये वो फोर्थ कॉलम है, इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन है, यही 2 बची है, तो यही स्मॉलेस्ट है, 10 और 60 बची, ये तो ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी है, राइट। स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन D4 इज 10, राइट, D4 में 10 है, तो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, ये कौन सा सेल है, ये सेल है हमारे पास 14, तो X14 में हम एलोकेशन करेंगे, ये आएगा मिनिमम ऑफ, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर सप्लाई देखेंगे, सप्लाई 7 थी, 5 एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हमारे पास 2 ही बचा था, यहाँ पर सप्लाई 2 है, और डिमांड यहाँ पर कितनी बची है 4, बिकॉज 10 ऑलरेडी मीट आउट हो गई, 4 बची है, 2 और 4 का मिनिमम ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर एलोकेशन कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, 10 + 2 14, इसकी डिमांड 10 + 2 12, इसकी डिमांड है 14, अभी भी 2 हमारे को और चाहिए, राइट, ये तो इट मीन्स हमारे पास एलोकेशन के लिए कौन से बचे, ये 2, एक ये बची है, और 5 + 2 7, टोटल सप्लाई यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई, 10 + 8 18, यहाँ भी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये भी एग्जॉस्ट है, तो हमारे पास मस्ट एलोकेट में आ जाएगा, फाइनली हमारे को सप्लाई और डिमांड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, तो बाकी तो बच्चे हमारे पास मस्ट एलोकेट, यहाँ देख लो ये कौन सा सेल है, दिस इज सेल 24, X24, ये तो कितना आना चाहिए, ये तो मस्ट एलोकेशन, यहाँ पर एलोकेशन 2 होगी, तभी आपका 14 बनेगा, 10 2 2, तो ये मस्ट एलोकेशन में आएगा 2, और यहाँ भी मस्ट एलोकेशन में, यहाँ 2 हो गया, हमारे को यहाँ 7 चाहिए, बिकॉज ऊपर क्रॉस आउट हो चुकी है, टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहाँ भी टोटल सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, इधर देखने की जरूरत है, बस हमने कॉलम वाइज, इसकी डिमांड 7 थी, अभी इसको कुछ भी नहीं एलोकेट हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर मस्ट कितना आ जाएगा 7, ये कौन सा सेल है, दिस इज 2 3, X23, दिस इज X23 सेल, यहाँ पर एलोकेशन कितनी आ रही है 7, सो इन दिस वे all the supply and demand conditions are satisfied, चेक कर सकते हैं हम 5 8 7 14 all the demands are satisfied, meet out, देखते हैं सारी हमारी पास सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है नहीं, 5 to 7 एग्जॉस्ट, 7 to 9 एग्जॉस्ट, 8 + 10 18 थी एग्जॉस्ट, तो ऑल द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एलोकेशन भी हमारे पास कंप्लीट हो गई, राइट।
एलोकेशंस कंप्लीट है। अब देख लेते हैं हियर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस अगेन यहाँ पर एलोकेशंस कितनी आ रही है 6 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम्स -1, ये भी 6 ही है राइट। दिस इम्प्लाइज दिस, ये जो हमारे पास अभी सॉल्यूशन आया इनिशियल सॉल्यूशन में जो हमारे पास एलोकेशन है इनिशियल सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते हैं एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड with this solution is क्या आ जाएगा, एलोकेशन को हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 इंटू 5 8 इंटू 8 40 इंटू 7 एलोकेशन को पॉजिटिव इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से जितनी यहाँ पर कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 60 इंटू 2 20 इंटू 10। ये पूरा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 779। इजीली कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं द मिनिमम कॉस्ट अमंग ऑल बाय मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन by all of these 3 method is by penalty method. That's why this method is preferred, right? अगर हम नेक्स्ट अगर इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे तो या यही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या वेरी वेरी क्लोज टू दिस वन जब हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अभी तो हम केवल इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं राइट। दैट्स वाई राइट दैट्स वाई पेनल्टी मेथड इज प्रेफर्ड। penalty method is preferred for finding initial solution, initial जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। रीजन बीइंग इससे कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाती है, मिनिमम आ जाती है राइट। So this is the initial solution by all of the 3 methods and we come to know that penalty method is the best method for finding initial solution, right? Now modified distribution method। अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें बहुत सारे 3-4 रूल्स आएंगे कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने केवल इनिशियल सॉल्यूशन अभी तक चेक किया है। अब इस इनिशियल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हमने पहले डिटेल में किया था जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम की थी ट्रांसपोर्टेशन मेथड की। उसमें क्या था हमारा, हमने उसमें जो स्टेप एक था कि हमने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड निकाला है। मीन जो हमने इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड किया उसको हम ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक करेंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल यही है कि हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। किसी भी एक मेथड से निकाल दो, चाहे नॉर्थ वेस्ट मेथड, एलसीएम या पेनल्टी, बट दिस मेथड इज प्रेफर्ड। इनसे भी कर सकते हैं पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। अगर पेनल्टी मेथड से करेंगे ऑलमोस्ट हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा या तो क्या होगा, वेरी वेरी क्लोज। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल सॉल्यूशन निकाल दिया, फिर हम इनिशियल सॉल्यूशन को क्या उसमें क्या करेंगे, हम यूआई और बीजे वैल्यू निकालेंगे एलोकेटेड सेल्स के लिए राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस रूल को समझने के लिए। एलोकेटेड सेल्स क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज एलोकेटेड सेल्स, ये एलोकेटेड सेल्स है। इनिशियल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, इसमें हम यूआई और बीजे, यूआई मीन्स यूआई होते हैं रोज के लिए, स्प्लाइस के लिए हम यूआई निकालेंगे तो 3 यूआईज आएंगे, और बीजे मीन्स कॉलम्स के लिए, डेस्टिनेशंस के लिए हम बीजे निकालते हैं तो 4 बीजे आएंगे, B1 B2 B3 B4 आएंगे राइट। यूआई और बीजे हम फाइंड करेंगे राइट। इनमें से हम एक को 0 सपोज करेंगे, या तो यूआई को या तो बीजे को। किसको हम, दिस इज जस्ट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू B1 B2 B3 एंड B4। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है राइट। सो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगी उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जहाँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगी उसको हम 0 पुट करेंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन आर इन सेल, दिस वन 4th कॉलम में है, तो इसमें जो आ रहा क्या आ रहा है B4 है, तो हम B4 को क्या करेंगे, B4 को हम 0 सेट कर देंगे राइट। ये रूल बोलता है, B4 को हम 0 सेट कर देंगे। अब यहाँ से रिजल्ट फिर हम क्या करेंगे, बाकी की वैल्यूज निकालेंगे B1 B2 B3 बाय यूजिंग दिस U1 U2 U3। इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे C, दिस इज फॉर ऑल द ऑक्यूपाइड सेल, जितने भी ऑक्यूपाइड सेल्स है
सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे। जैसे इस ऑक्यूपाइड सेल के लिए अगर हमने सी आई जे निकालना है, ये कौन सा सेल है 1 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1, ये आ जाएगा यू वन प्लस बी वन, राइट, इस तरह से आएगा। यहाँ पर हम सी 1 1 कॉस्ट हमारे पास 19 दी है, तो ये जो सी क्या है, सी आर द कॉस्ट, दीज आर ऑलरेडी गिवन, यू वन और बी वन, यू वन यहाँ है ये निकला होगा, और बी वन भी यहाँ होगा। सबसे पहले बेटर रहता है बी फोर अगर 0 हमने सेट किया है तो इन सी आईज को इनको पहले निकालो। ये कौन सा है, ये आएगा C14, ये आएगा C24, ये होगा C34। इससे क्या, बिकॉज B4 इज 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 4 मीन्स यहाँ पर B1 B2 B3 आ जाएंगे यहाँ से, राइट, B1 B2 B3 आ गए तो बाकी भी इजीली निकाल देंगे। तो ये पहला रूल ये है, यू आई और बी जे निकालेंगे हम बाय यूजिंग सी आई जे। दिस इज ओनली फॉर द ऑक्यूपाइड सेल, जो जहाँ पर एलोकेशन हुई है इनको बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। दिस इज फर्स्ट रूल। फिर सेकंड रूल क्या बोलता है, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, जो बाकी जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई है वो अनएलोकेटेड सेल्स है। कौन कौन से अनऑक्यूपाइड या अनएलोकेटेड सेल्स है हमारे पास, ये सेल्स कैसे हैं, यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं हुई है। दिस इज 1 2 1 3 2 1 2 2, दिस इज 3 1 3 3, यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं होगी, इनको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड सेल। इसके लिए हम निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी आई जे इजकल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो डी आई जे में इसमें क्या होगा 1, ये होगा 1 2, तो डी आई जे क्या बन जाएगा 1 2, तो यहाँ सी आई जे ये भी बन जाएगा 1 2, यहाँ हो जाएगा यू वन प्लस बी टू, राइट। इस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो ये 1 2 सेल है, आई और जे 1 2 होंगे, तो ये भी बन जाएगा 1 2 माइनस यू वन प्लस बी टू। 1 2 कितना है, 1 2 30 है, सी आई जे कॉस्ट 30 है, यू वन प्लस बी टू, यू वन प्लस बी टू हमने स्टेप रूल 1 में निकाले हैं, यू वन और बी टू पहले निकाले। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर ये 1 3 है, जैसे ये 2 1 है, ये 2 2 है, बस सभी के लिए जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल इनके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। सारी डी आई जी आ गई, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, अब यहाँ से डिपेंड करता है। अगर सारे के सारे, थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास डी आई जे 0 या 0 से बड़े आ जाए इफ, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाता है, ऑप्टिमल हो जाता है। बिकॉज ग्रेटर देन 0 में तो वही इनिशियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर डी आई सारे वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो वही इनिशियल सोल्यूशन क्या हो जाता है, ऑप्टिमल है। अगर डी आई जे 0 पे आ जाए देन देर इज नो नीड टू वरी, उस केस में क्या बोलते हैं हम, हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आएंगे, सॉरी अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे, एक से ज़्यादा आएंगे, मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे। उस केस में हम यहीं स्टॉप करेंगे, देर इज नो नीड टू गो फर्दर। अब हम रूल 4 में कब जाएंगे, व्हेन डी आई जे, कुछ डी आई जे आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। इफ सम डी आई जेज आर नेगेटिव, सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नेगेटिव, जो हमने रूल 2 में निकाली थी, तब हम क्या करेंगे, तब हम उस जो इनिशियल सॉल्यूशन को उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे हम, क्या रिवाइज करने के लिए रूल क्या बोलता है, रूल 4 क्या बोलता है, हम एक लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें हमने क्लोज लूप हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। व्हाट इज क्लोज लूप, क्लोज लूप कैसे बनती है, हम क्या करेंगे, एक क्लोज लूप बनाएंगे स्टार्टिंग विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मान लो एक ही नेगेटिव, यहाँ से हमने स्टेप 2 में डी आई जे निकाली गई ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर तो एक ही नेगेटिव है तो वही मोस्ट नेगेटिव हो गई। अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव है, लेट अस सपोज D23, मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ, लेट अस सपोज D22 नेगेटिव है, दिस इज -2, और क्या था हमारे पास अपॉर्चुनिटी, यहाँ देख देते, जैसे लेट अस सपोज इसकी कॉस्ट आई हमारे पास -2, और एक ही सपोज कर लेते हैं, कौन सा है, दिस इज 3 3, और मान लो 3 3 हमारे पास क्या है, दिस इज -1। दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल थी, बिकॉज डी आई जे किसके लिए होते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ये दो नेगेटिव हैं, तो इनमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये वाला मोस्ट नेगेटिव है D2। तो हम क्लोज लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, D22 मीन्स यहाँ से हमारी क्लोज लूप स्टार्ट होगी, दिस इज D22, और इस पर साइन क्या देंगे हम, विद प्लस मार्क, विद मार्क प्लस, मीन्स रूल 4 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्लोज लूप स्टार्टिंग विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज, जैसे इस वाले मैंने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे इन दो में से हमारे पास क्या थी, ये है, बिकॉज इसमें -2 है, तो यहाँ से हमारी लूप स्टार्ट होगी, इस पर साइन क्या मार्क देंगे हम, प्लस, देन प्लस माइनस एट अल्टरनेट पोजीशन,
एट ईच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द लूप। अब लूप यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आप एंटी क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं या हम एंटी क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं ऐसे, और क्लॉक वाइज भी एंटी क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं और क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, लूप हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहीं पर खत्म होगी। और किस डायरेक्शन में जाएगी, लूप में मिनिमम 4 सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ देखते हैं, अगर मान लो लूप इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्टार्ट होगी अनऑक्युपाइड सेल से। बाकी जो लूप में जो कॉर्नर आएंगे वहाँ पर ऑक्युपाइड सेल ही होनी चाहिए। अगर मान लो इन 4 से हम बनाते हैं, यहाँ पर ऑक्युपाइड सेल नहीं है। अगर हम इन 4 से बनाते हैं, यहाँ पर ऑक्युपाइड सेल है कॉर्नर में, यहाँ भी कॉर्नर में, इसको छोड़कर बाकी हर जगह कॉर्नर में क्या होना चाहिए, ऑक्युपाइड सेल। इट मीन इन 4 में भी पॉसिबल नहीं है, ऊपर को भी पॉसिबल नहीं है, कॉर्नर में अनऑक्युपाइड सेल्स आ रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन क्या बची, तो हमारे पास अगर हमने लूप बनानी है, यहाँ पर लूप बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस वाला एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से यहाँ आएगी, कॉर्नर में आ गया आपके पास, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से लूप यहाँ जाएगी, और यहाँ से लूप वापस आएगी जहाँ से चली थी। आप देख सकते हैं इस लूप में कॉर्नर पर आएगी, इसको छोड़कर कॉर्नर पर क्या है, इस लूप में अब कॉर्नर में केवल हमारे पास क्या है, ऑक्युपाइड सेल्स है। कॉर्नर इसका एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कॉर्नर पर हमारे पास ऑक्युपाइड सेल्स है। यहाँ पर एलोकेशन 8, 10 और 2 है। और प्लस माइनस अल्टरनेट पोजीशन पर लिखेंगे, प्लस से स्टार्ट होगा मोस्ट नेगेटिव से, फिर माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस ही है, बस यहाँ लूप हमारी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। आप देख सकते हैं हाउ मेनी सेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लूप, 2, 4, 6। तो हम मिनिमम इवन नंबर ऑफ 4 सेल मिनिमम पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4 मिनिमम मीन्स इवन 4 मिनिमम ऑफ 4 इवन सेल्स। तो 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह चल सकते, तो इसमें 6 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ से लूप स्टार्ट होगी वो अनऑक्युपाइड से डेफिनेटली स्टार्ट होगी, मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से विद साइन प्लस। बाकी जो कॉर्नर उस लूप में होंगे वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्युपाइड। इसमें 3 कॉर्नर और आ रहे हैं, 1, 2, 3, इन सभी पर क्या है, ऑक्युपाइड सेल है। तो आप चाहे आप क्लॉक वाइज चलो चाहे एंटी क्लॉक वाइज बनो, इस वाले केस में केवल यहीं पर क्लोज लूप बन गई। सो दिस इज क्लोज लूप। ये रूल 4 है, रूल 4 बन गया। रूल 4, अब रूल 5 क्या बोल रहा है, हम क्या करेंगे इसमें, अब हम चेक करेंगे इस क्लोज लूप में, हम चेक करेंगे द स्मॉलेस्ट एलोकेशन अमंग द सेल मार्क विद नेगेटिव साइन। इस क्लोज लूप में और साइनिंग हम केवल कॉर्नर पर करेंगे, जैसे यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, प्लस माइनस, बीच में साइनिंग कहीं नहीं होगी। क्लोज लूप में कॉर्नर, इसमें कॉर्नर में जो नेगेटिव वाली साइन के साथ उनमें देखेंगे हम कौन स्मॉलेस्ट कॉस्ट है, स्मॉलेस्ट एलोकेशन है। नेगेटिव वाली मार्किंग वाली लूप में 2 है एलोकेशन, 2 एंड 8। इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है, 2। ये रूल 5 बोलता है। तो इनमें जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट दैट इज 2। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, एडिंग दिस 2 टू सेल मार्क विथ प्लस साइन। इस जो इन नेगेटिव मार्किंग साइन में जो एलोकेशन 2 थी, इसको हम प्लस वाले साइन के साथ ऐड कर देंगे और माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था, इट मीन्स यहाँ पर एलोकेशन 2 हो जाएगी। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर एलोकेशन क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। प्लस वाले में ऐड कर रहे हैं ना हम, और माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस वाला यह है, तो 2 - 2 0 मीन्स यहाँ पर एलोकेशन यहाँ से एलोकेशन क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, क्रॉस हो गया। और 8 - 2 यहाँ पर क्या रह जाएगा, 6। और ये वाली एलोकेशन अब क्या हो गई, ये वाली एलोकेशन अब रिवाइज होगी और इसकी जगह क्या बन गया, एलोकेशन अब 6। सो दिस अब हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसपोर्टेशन टेबल भी मॉडिफाइड हो गया, जिसको हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन बनेंगे। फिर से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, और ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी की सारी, 7th रूल क्या बोलता है, जब तक सारी की सारी डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास या पॉजिटिव हो जाए, 0 या पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो क्लोज लूप बनाई। क्लोज लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वहीं से स्टार्ट होगी। फिर हमने देखना है कौन सी सेल में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किस सेल के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, प्लस साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। और फिर हम क्लोज लूप किस डायरेक्शन में बनाएंगे, दिस इज फॉर्म्ड और कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट बाकी कॉर्नर जो लूप में होंगे वहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल ऑक्युपाइड सेल होना चाहिए। सो एक ही ऑप्शन थी इस वाले केस में, हमारे पास जो लूप बनी थी वो इस डायरेक्शन बनी थी। अब इसको छोड़कर बाकी हर जगह देखेंगे कॉर्नर में केवल ऑक्युपाइड सेल्स ही है। लूप जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर खत्म होगी, राइट। और जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पर साइनिंग प्लस करनी है, देन प्लस माइनस एट अल्टरनेट पोजीशन एट ईच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द लूप। इसमें कॉर्नर पॉइंट 3 और आगे प्लस से स्टार्ट होता, तो माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह है मार्किंग। फिर हमने रूल 5 में क्या था,
जो नेगेटिव साइन वाली जो एलोकेशन थी उसमें देखना मैंने कौन स्मॉलेस्ट है, 2 और 8 में स्मॉलेस्ट 2 है, फिर हम नेगेटिव वाले में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले में 2 को ऐड करेंगे। यहाँ से एलोकेशन एलिमिनेट हो गई, 2 - 2 0। ये वाली एलोकेशन थोड़ी कम हो गई, ये 6 बनेगी 8 के बजाय, यहाँ पर थी नहीं पहले, यहाँ पर एलोकेशन नई रिवाइज हो गई 2 हो गई। अब इसका हम क्या बनाते हैं, रिवाइज्ड मॉडिफाइड करते हैं, मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाएंगे और जहाँ से हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। सो ये स्टेप जो हमारे पास 3-4 स्टेप्स 2 3 4 बार बार हम फिर से निकालेंगे, वही निकालेंगे। पहले हम सी आई जे निकालेंगे, यू आई और बी जे, सॉरी यू आई एंड बी जे निकालेंगे, फिर हम डी आई जे निकालेंगे, एंड ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पास सारे के सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो पॉजिटिव हो जाए या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े पॉजिटिव हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट the optimality condition by modified distribution method. Once you have find the initial basic feasible solution by any one of these three method, north best corner method, least cost method and penalty method. So dear friend, this is all about today's lecture. Thank you.